joining in. Let's, I guess, go ahead. Wonderful. Hi, everybody. Hello, hello, hello to all the parents, new and old. There are so many familiar faces I'm seeing. So nice to see you all. And there are so many new names I'm seeing. I'm not seeing faces. I think if everybody can be comfortable to share their screen like video, turn on their video. अच्छा लगता है अगर सबको हम देख पाएं एंड स्पेशली जब कलिका जी शेयर करेंगी आपके साथ इंटरेक्शन होगा सो इट विल बी वेरी नाइस. Wonderful. Thank you all for joining. What a pleasure. I'm going to get started now. Just give me 1 second to share my screen. Okay. 1 second. All right. So, all right. A very warm welcome to all of you on behalf of Samarthya Foundation and SNCC Rehab Foundation. I am Dr. Shivani Pandit. For those of you who don't know me, I am a special educator. I have been working with children with autism and intellectual disabilities for the past 27, 28, 29. I'm not sure how many years now, pretty much all of my life. And I started Samarthya Foundation with the explicit mission of serving families of children with autism and intellectual disabilities, particularly those that live in tier 2 and tier 3 cities. And at the end of this presentation, we will have some conversation about what Samarthya does for those of you who are new, the various online programs that we offer, and our new family resource center that we have started in Pune. So those of you who are from Pune, definitely put it in the chat box. Tell us if somebody is here from Pune. And welcome again, a very warm welcome to all of you. We started this series of 4 webinars, parent webinars in collaboration with SNCC, of course. And, we have Harshali Kharche here, our long partner. So many of you know that SNCC and Samarthya have been working in collaboration on so many different projects. And I am personally so excited to have SNCC Rehab as a partner and to have Harshali Kharche as a partner and a friend, to be here to welcome all of you for our first webinar in the series, which we are calling our Friday series. And at the end of every webinar, we would love to get your feedback if you want more topics, if there are topics that we haven't addressed in these 4, if there are things that you want to learn, we will work together to find the right experts to support you and to guide you. And like I said, again, my heartfelt gratitude to Harshali for this incredible collaboration, to be able to reach out to so many of you here today. With that, I would love to invite Harshali to say a few words about SNCC Rehab Foundation. And then today, I also want to introduce to all of you our Director of Programs at Samarthya, Ms. Riddhi Deria, who is going to be the facilitator for today's session. She will introduce our speaker for the day, Ms. Kalika Mujumdar, and she will be supporting, and we have our incredible program coordinator, Vanessa Norona, here as well. Please wave, all of you, when I introduce you so people know who you are. And finally, we have our occupational therapist, Kanchi Goswami, here as well. So I'm happy to have my team with us. And with that, I will give it off to Harshali. Harshali, I hope you are able to hear us. Yes, please go ahead. Yes, I'm here and welcome everyone. After a long time, I'm seeing everyone here online. And this is Harshali Kharche. I'm of course the mother of 2 on Spectrum and then the founder of SNCC Rehab Foundation. I'm from Nagpur and I'm very grateful to Samarthya Foundation for doing this with us because we parents know our problems and that's why we are collaborating as you know and some of you are new. So I can say SNCC is by the parents and for the parents. Our all directors and everyone all are parents of special needs. So we can understand in very well what are the problems we are facing
So basically, we are here to empower parents of children with special needs by ensuring that they should be at peace of mind and satisfaction with positivity so that we can work with our child's development. So this is our vision. So in this vision, we have various missions and motto, but I will not go through in detail because as we are going to move quickly on our topics. But I just wanted to give you a clear idea that can help you parents in a better way and guide you to the right professionals. Because I can see there are many practices which are not as per scientific ways. So that's why we are here to in collaboration with a proper professional. So let's go ahead, Dee. Thank you, Harshali, so much for being here in spite of your There is absolutely busy schedule. So I appreciate you being here, and please stay on for as long as you can and as long as your internet works. And with that, we will jump right into the session. So I would love to invite for today's session, I would love to invite our Director of Programs, Ms. Riddhi, to introduce our guest speaker. And I know a lot of you are still joining in, so it's good time, I think, to have all the introductions. So Riddhi, over to you. Yes. Good evening, parents. It's a pleasure to have you all over here. I am really excited to introduce Mrs. Manjumdar. She's going to do the session on puberty and sexual behaviors in children with special needs and how can you all address them. So, talking about Mrs. Manjumdar, she's been super experienced since last 5 years. She is conducting these sessions for children with the help of Tathapi Foundation. She has organized many workshops for teachers, for parents, and for of children with special needs. So let me not waste any more moment and let us just have her, who is a founder of Newly Foundation, and let's call Miss Kalika Manjumdar to start off. Over to you, Miss Kalika. Just before you start, Kalika ji, I just want to thank you so much for being here and for doing this session for all of our parents. And I know we had discussed that we will do the session in a mix of Hindi and English. So I just want to tell all the parents that if she says something in Hindi and Hindi is not your first language, you want us to speak that in English, please put that in the chat box. She can repeat that content. Riddhi can support. Vanessa is there. We all are here. So she will go between Hindi and English because we have a great mix of parents coming from all over the country. So we will try our best to suit your needs. But if there is anything that you want to ask, please put it in the chat box. We are here to take your questions. If there is a topical area that she's speaking about that you didn't understand, put that in the chat box. Vanessa will take care of that and let Kalika ji know that maybe repeat that in English or maybe repeat that. So just wanted to say that again. Thank you so much for being here. Can we start? Welcome to all this workshop. Namaste sabko. First of all, I was thank to Shivani Pandit, who is the founder person of the Samarthya Foundation, कि उन्होंने ये सब्जेक्ट को वेबिनार और वर्कशॉप के लिए चूज किया, क्योंकि बहुत से टाइम पे हमारा ऐसा होता है कि हम सब लोग ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखते हैं। तो ऑप्शनल में जब नेसेसिटी हो जावे तभी हम उसको छेड़ते हैं, तभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन आज हम ऐसा करते हैं कि ये सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देके उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो फेल होने के चांसेस भी इसमें बहुत कम होंगे और अच्छा लगेगा कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम थोड़ा मेन इसमें डाल देंगे। मेरा आवाज और ये सबको सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Okay. फर्स्ट हम जो ये है कि एडोलेसेंस हेल्थ एंड प्यूबर्टी, हम ये 1 घंटे में थोड़ी कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमारे बच्चों में जो प्यूबर्टी स्टेजेस आते हैं वो जब वो एज में ये आते हैं तो क्या क्या चेंजेस उनमें होते हैं, क्या क्या बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, कुछ बॉडी चेंजेस हो जाते हैं।
तो हम कैसे उनको पहचाने, क्या उनके साथ हम कैसे काम करें, कैसे डील करें, और उनकी तकलीफें, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा उनको कैसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। एक थोड़ी देर के लिए हम डिसेबिलिटी यानी कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं ये थोड़ी एक 10-15 मिनट के लिए हम साइड पे रखते हैं, और एज वी नो कि ऑल वी आर अ नॉर्मल पर्सन, ऐसा हम सोचते हैं, तो ये इनके बारे में हम एक 5-10 मिनट बात करते हैं। फर्स्ट हम जो ये सारे हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल हम जो लोग हैं, हाँ, उनके हम बात करते हैं शरीर साक्षरता यानी बॉडी लिटरेसी। तो एग्जैक्टली व्हाट इज बॉडी लिटरेसी? हाँ, तो फर्स्ट हम एक देखेंगे कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर और मन, यानी हम सोचते हैं कि बॉडी लिटरेसी, ये हमने तथापि के साथ काम करने के टाइम हमने ये डेफिनेशन की थी कि बॉडी लिटरेसी यानी हमारे अंदर के जो शरीर का भाग है, शरीर के बॉडी पार्ट्स है, दैट नॉट ओनली द बॉडी पार्ट्स बट हमारा बॉडी एंड हमारे शरीर और माइंड और मन जब एक साथ में होते हैं तभी हमारे शरीर और हम इंसान एज अ फुलफिलमेंट हम बोल देते हैं। तो इसमें से हम बॉडी और माइंड जब दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो, हाँ, जब मन बहुत सुखी है, मन बहुत शांत है, तभी हमारा शरीर और हमारी बॉडी भी बहुत हेल्दी दिखती है, क्योंकि मन में जो कुछ भी बात हुए अगर तो उसका असर हमारे बॉडी पे होता है, और बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसका असर हमारे मन में होता है। तो फर्स्ट अपना हमको ऐसा है कि हमारे शरीर, हमारी बॉडी और हमारा मन, उसमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। कैसे? तो खुद को पहले खुद से प्यार करना सीखना है, हाँ, कि हम जैसे हैं, जैसे मैं हूँ वैसे मुझे मैं बहुत पसंद हूँ, हाँ। तो वही एक है कि हम खुद से जब फ्रेंडशिप करेंगे, खुद से जब प्यार करेंगे, तो ही हम हमारे साथ दूसरों को, हम उनके शरीर में, उनके मन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको क्या बात करनी है, उनको उनका क्या कहना है, वो थोड़ा अच्छी तरह से समझने की हम कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट हम जब we see the internal parts of the body, huh? So what are the parts of the body which we can't see, huh? So first, that is brain, heart, liver, kidney, intestine, that is small intestine, bigger intestine, huh? Alimentary canal, that is trachea, huh? All these parts of the body which can't see, huh? These are the inner part of the body. So ये सारे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उनको हमको एक थोड़ा सा उनके ऊपर हमको एक देखना है कि वो कैसे काम करते हैं, हाउ दे वर्क, हाँ, हाउ किडनी वर्क, हाउ ब्रेन, हाउ, कैसे वो उनका इंटरनली पार्ट कनेक्टेड है और वहां से हमारा ये काम चलता है। अभी हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो वी, ये जो हमारा 1 घंटा है, इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सेक्सुअलिटी, दैट इज सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी। सो उसमें क्या क्या आते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स इंक्लूडेड इन द सेक्सुअलिटी, जस्ट विल सी, हाँ, और बाद में हम उसके लिए अलग से सेशन करके बहुत से अच्छी तरह से उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा हर एक इंसान का इंटरनल पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, हाँ। तो इसमें मैंने कौन से पार्ट्स के नाम नहीं लिए, which parts are not included in this body, that is reproductive system of the reproductive system, that is part of the reproductive system. What are they? हाँ, वो अलग अलग हो जाते हैं। कौन से? तो वो मेल के लिए अलग है, फीमेल के अलग है। मेल के हमने बॉडी, रिप्रोडक्टिव बॉडीज देखे, पार्ट्स देखे, तो पेनिस है, और गर्ल्स और लेडीज और फीमेल के देखे तो यूटेरस, ओवरीज, ये सारे जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। वही जो पार्ट्स है वो इनमें इंक्लूड नहीं किए,
तो सारे इंसान के बॉडी पार्ट्स और इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। ये दो पार्ट्स के हिसाब से हम वी कैन रियलाइज दैट फीमेल और फीमेल। अभी ये सारे जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग है वो सबके इसमें सेम काम करते हैं, लेकिन हमारे स्पेशल बच्चों में अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर उनके प्रॉब्लम्स, उनके माइलस्टोन्स के कम और जो ज्यादा माइलस्टोन से कम ये होते हैं, उनके हिसाब से उनका जो काम है शरीर में होने का वो थोड़ा अलग अलग एज में अलग अलग चीजों में अपने को दिखता है। अभी ये हुई हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, अभी हम जो देख सकते हैं वो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो हम सब हमको देखते हैं। आईज है, ईयर्स है, हैंड्स है, चेस्ट है, ये सब हमको बाहर से लोग हमको देख के जान सकते हैं कि ये कैसे है, देखने में कैसे है, उनका बिहेवियर कैसे हो सकता है हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे फेस के हिसाब से। लेकिन हमारे बच्चों में अभी हम थोड़ा हमारे बच्चों के ऊपर आते हैं जो डिसेबिलिटीज के अनुसंग है कि उनमें अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज दिखती है। कोई डाउन सिंड्रोम के है, ऑटिस्टिक है, सेरिब्रल पाल्सी है। वो जो बच्चों में अलग अलग डिसेबिलिटीज के अनुसार से प्यूबर्टी का पीरियड थोड़ा अलग अलग हो जाता है। नॉर्मली जो प्यूबर्टी एज है वी कैन सी इन द मेल that is 11 to 15 years and in female that is 9 to 13 years। ये हमारे एज प्यूबर्टी के एज है जहाँ पे चेंजेस हमको गर्ल्स में और बॉयज में दिखते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली प्यूबर्टी? सो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में उनकी डेवलपमेंट होती है और जो डेवलपमेंट की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स में और हमारे बॉडी में उसके चेंजेस दिख जाते हैं, वो इज एक्चुअली प्यूबर्टी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल व्हेन दे आर व्हेन वो प्यूबर्टी में आ जाते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि लड़कियां जब एज प्यूबर्टी का एज उनमें आता है कि 9 to 30, तो उनमें क्या क्या चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। हाँ, उनमें है एक्चुअली हम सबको पता है, हाँ वी नो कि हम क्योंकि हम सब लोग वो एज से जा चुके हैं, तो हमने भी वो सब मालूम है हमको कि हमारे में भी क्या क्या चेंजेस हुए थे, हम क्या क्या स्टेजेस से हम पास हो रहे थे। तो वही स्टेजेस से हमारे बच्चे भी जाते हैं। खाली एक उनमें हमको देखना चाहिए कि उनका एज, फिजिकल एज और उनका मेंटल एज, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस रहता है। मे बी वो 35 के हो as their age, physical age is 35 or mental age is 10 years old या 12 years old. So there is a vast difference between physical age और mental age. So age बढ़ता है, शरीर उसके साथ जो नेचुरलिटी है उसमें से उनकी बॉडी चेंजेस होते हैं, तो उनमें भी वो इमोशंस आते ही है। उसमें कोई भी चेंज नहीं कि वो डिसेबल है या नॉर्मल है, कि उनमें वो थिंकिंग नहीं आनी चाहिए, उनको वो अर्ज नहीं है, उनको वो विचार ही नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर बच्चों में खाली उनके एज डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू देयर एज डिफरेंस और देयर माइंड डिफरेंसेस के वजह से वो कभी 18 में दिखेगा, कभी 15 में दिखेगा, नहीं तो वो कभी 25 या 30 में भी दिख सकता है। लेकिन वो हमको
फेस करना पड़ेगा। अभी जब लड़कियां ये एज में आते हैं तो देयर इज अ चेंज इन देयर बॉडी, देयर इन माइंड, सो उनका इंक्रीज देयर चेस्ट साइज, हिप साइज, ग्रोथ ऑफ हेयर आर फास्ट, वो एकदम से थोड़े शाय, दे बिकम शाय, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, पिंपल्स आ जाते हैं, थोड़ा फ्रेंड सर्कल में ज्यादा बिलीवनेस आ जाता है इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स। ये सारी चीजें, स्टार्ट देयर पीरियड्स, ये सारी चीजें हमको लड़कियों में दिखती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एज अलग हो जाती है। हमारे में कोई ऐसा एग्जाम्पल्स है कि लड़कियां 2022 के आने के बाद भी उनके पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए थे, इसीलिए उनको जो हम प्यूबर्टी के स्टेजेस दिखते हैं वो जो एज में दिखने चाहिए वो हमको अबाउट 25 के बाद हमको दिखने पड़े, क्योंकि उनके पीरियड से स्टार्ट फ्रॉम 22 एट द एज ऑफ 20। ये जो चेंजेस होते हैं वो बहुत से बार हार्मोनल के वजह से ही होते हैं, जो हमको लड़कियों में, गर्ल्स में वी सी द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोल हार्मोन्स, और इन मेल दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अभी लड़कों में जब हम देखते हैं कि 11 to 15 में there are the different changes in boys, that is first of all voice change, हाइट एकदम ग्रोथ हो जाती है उनकी हाइट की, स्टार्टेड कमिंग स्मूथ एंड बियर्ड, पिंपल्स आते हैं, स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है उनकी, स्टार्ट टू डेवलप सीमन इन देयर सीमन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, लीडरशिप, और एकदम टोटल बिंदास। ऐसे वो सारे चेंजेस हमको हर में अपने बच्चों में दिखते हैं। अगेन ऐसे कि वो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर डिसऑर्डर्स, और उनके माइलस्टोन के इसके में भी वो डिफरेंसेस हमको एज में दिखते हैं। कभी 15, कभी 18, नहीं तो 22, 30 ऐसे। ये जो है कि ये जो हमको चेंजेस दिखते हैं ये तो हम हमारे बच्चों में भी दिखते हैं, नॉर्मल बच्चों में भी दिखते हैं, और हमारे स्पेशल बच्चों में भी दिखते हैं। खाली एक डिफरेंस ऐसा है कि नॉर्मल बच्चों में वो जो चेंजेस दिखते हैं उनको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। Our students can't express their emotions, क्योंकि उनको वो समझ ही नहीं आता है। They don't know what is exactly going on in our body or in our mind, कि ये क्यों बढ़ रहा है, हम क्यों अलग दिख रहे हैं, लोग हमको क्यों अलग तरीके से देख रहे हैं, कुछ हमको कोई क्या हो रहा है वो कैसे बताए, ये उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत से बार दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। उनको कम्युनिकेशन गैप बहुत होती है, स्पीच नहीं होती है। ऑटिज्म बच्चे हमारे से हम खुल के बात, उनको तो स्पीच का ही बहुत, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है। सो बहुत सी चीजें इसमें है कि वो डायरेक्टली हमसे ये बात नहीं कर सकते। सो एक मेजर हम सबको बहुत से पेरेंट्स को और हम टीचर्स को ऐसा होता है, तो समझे कैसे, हाउ वी नो कि something is different, something is happened in their mind, something is happened in their body, so हम एक बोल लेते हैं कि बिहेवियर इशू है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स है। तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या है, ये बिहेवियर इश्यूज एग्जैक्टली क्या है, क्यों आ रहे हैं, ये कौन से एज में पर्टिकुलरली हमको दिखते हैं। एडीएचडी होते हैं वो बैठते नहीं है, इधर उधर घूमते हैं, सब चीजें अलग अलग होती है उनमें।
डाउन्स के बच्चे 18 तक बहुत शांति से सब चीजें करते हैं। दे आर वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट्स, हर चीज हमारी अच्छी तरह से मान के करते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आता है। सीपी बच्चे भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑल्सो दे आर वेरी ओबीडियंट, दे आर नॉट स्टबन, बट आफ्टर सम एज हमारे पास कोई ऐसे एग्जाम्पल्स है कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स हमारे बहुत स्टबन हो जाते हैं और ऑलवेज दे कंप्लेनिंग। हाँ, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई फ्रेंड्स नहीं है, nobody will talk with us। हाँ, मुझे कहाँ लेके नहीं जाते हैं। हाँ, मैं क्या करूं, क्योंकि there is a little understanding of हम क्या बोल सकते हैं कि उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सेरेब्रल पाल्सी के अपने बच्चों में उनको एबिलिटी ज्यादा थोड़ी अच्छी रहती है, समझने की कोशिश वो करते हैं। हाँ, इसमें रिटार्डेशन की बात आई तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इसमें रिटार्डेशन की बात नहीं आई तो सेरेब्रल पाल्सी के लोग बहुत अच्छी तरह से ये सब बातें जानते हैं। बहुत से टाइम प्रॉब्लम आता है कि हमारे बच्चे जब बॉर्डर लाइन के केस में हो, देयर IQ इज बिटवीन 65 to 70 और मोर देन 55। हाँ, तो उनको समझ के लेना बहुत अपने को कभी कभी मुश्किल आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको एक थंब रूल कि हमें बच्चों के फ्रेंड्स बनना है। हाँ, दे फील कि our teacher, our mother, our parents, they are not like a parents or teacher, they are friends। वो हमारे फ्रेंड्स हुए तो वही बात वो खुल के बोल सकते हैं और we understand them very neatly। हमको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें इतने अच्छे से पढ़ने को आनी चाहिए कि उनकी हर एक मूव पे हमको पता चलना चाहिए कि उनके मन में। हेलो, Yes, yes. आ रहा थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, फिर से बोलिए। हाँ, हाँ, आ आपको रहा वापस रिपीट करना पड़ेगा, थोड़े पेरेंट्स के साइड से आवाज आ रहा था। ओके ओके। यस प्लीज। हाँ, तो एक है कि हम सबको ना एक हम जब बात एक ऑलवेज बोलते हैं कि जब हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स है। हाँ, वी ट्राई टू देम अवर फ्रेंड्स। हाँ, नॉट एग्जैक्टली कि ऑलवेज वी ट्रीट एज अ फ्रेंड्स, बट वी ट्राई टू देम एज अ फ्रेंड। तो हमको इनके साथ भी यही थोड़ी सी एक थेरेपी बोलो, नहीं तो एक कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ उन्हीं की लैंग्वेज में बात करें। हाँ, हर एक में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि एक सेल्फ अपना एक रहता है कि मेरे बिना कुछ भी मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं बात करूंगी तो उनको बुरा लगेगा। ऐसा उनको फीलिंग आवे तो बहुत अच्छे से उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे में हो जाती है। हम थोड़ा सा इसके साथ एक पॉइंट पे जाएंगे कि प्यूबर्टी माने सबके दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, इवन मी कि एज अ टीचर, और ए सेक्सुअलिटी, सेक्स। हाँ, एक्चुअली फिजिकल interaction between the opposite person, that is sexuality, sex, it's okay। हाँ, पर हमारे लिए हम जब किसी फोर्ट पे जाते हैं तो डायरेक्टली हम रोपवे से जाते हैं तो ऊपर तक जाते हैं, तो 25th इस पे जाते हैं फ्लोर पे तो हम लिफ्ट से 25th पे जाते हैं। लेकिन हमारे इसमें कुछ भी लिफ्ट, रोपवे, शॉर्टकट नो क्योंकि इसका हमें
यूज नहीं हो सकता है। हमको वो सीढ़ियाँ चढ़ के ही ऊपर जाना है। हमारे इसमें रोपवे की जगह नहीं है। हमको वो 25th पे जाना है तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। इसीलिए देर इज ए डिफरेंट और what I say कि multiple steps including sexuality. Not only कि हमको सेक्स लैंगिकता यही एक है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज छोटी 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 चीज है जो एंड में सेक्सुअलिटी वो पिरामिड और वो फोर्थ है जहाँ पे हमको जाना है, पर हम ऑलवेज पहले ऊपर जाते हैं और वहां से नीचे देखते हैं। और वो अपने आप वो जो ट्रैवल है, वो जो हमको ट्रैवल करना है, वो सारी सीढ़ियाँ वो अपने को बहुत डिफिकल्ट लगती है। बट ऑब्वियस क्योंकि जब हम ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है, तो वही हमको यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक 8-10 स्टेप्स इसमें है। मैं खाली उनके नाम और थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन देती हूँ कि हर एक में हम कैसे इलाबोरेट करके उनके साथ काम करके उनको कैसे हम रिलैक्स कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में रियली सेशंस लेंगे। शिवानी मैम भी बहुत इसमें है कि हम पर्टिकुलरली हम इसमें लेंगे एक 10-10 का 8-10 का ग्रुप करके, तो बहुत अच्छा हमारा ये सेशंस आगे जाके काम करेगा बच्चों के लिए। पहले तो हमको जैसे हम हैं वैसे हमको एक्सेप्ट करना है। हाँ, हमको हमसे प्यार करना है, हमको हमसे फ्रेंडशिप करनी है। ये सब हमने देखा सोचा, लेकिन हमारे बच्चों को हमको सिखाना है कि फर्स्ट एक्सेप्ट एज यू आर। हाँ, तो वो कैसे, उनको रियलिटी की भी थोड़ी उनके साथ बातें करनी चाहिए कि यू आर समथिंग डिफरेंट। हम सब अलग है, मैं अलग हूँ, आपके मम्मी अलग है, पापा अलग है, ग्रैंड पेरेंट्स अलग है, वैसे तू भी एक अलग है। वो हम कैसे, तो हमने एक 10-12 स्कूल के साथ एक अलग अलग प्रोजेक्ट लेके अलग अलग सैंपल्स लेके उनके साथ हमने काम करके एक छोटा एक बुक बनाया है। इसका मराठी एडिशन है, इंग्लिश में अभी निकल रहा है कि आम्ही असू लाडके, आम्ही ही मोठे होतोय, हम भी बड़े हो रहे हैं। ये आप कब समझेंगे, ये इसका कंटेंट है। तो इसमें हमने छोटी छोटी चीजें हमने की है कि फर्स्ट हम उनको सिखा सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल्स हमने बनाया है कि हम उनका बच्चों के साथ काम कर सकते हैं और उनको उनके मन में क्या चल रहा है उसके लिए ही हम उनके साथ बात करेंगे। इसमें अलग अलग चीजें हैं, दैट इज ए टच। हम उनमें गुड टच बैड टच नहीं, लाइक डिसलाइक बोलेंगे। हाँ, लाइक टच, dislike touch, which I love, which I don't want this. Yeah. Ma'am, can you repeat it once more? What you said a little. Okay, okay. हम जो अभी बात कर रहे हैं, हाँ, कि हम एक एक स्टेप पे जाएंगे। एक एक स्टेप में हम उनको इसके साथ बात करके उनके मन में क्या चल रहा है, हाँ, what they are thinking about sexuality, what they are thinking about which is going on their mind, हम उनके साथ वो डील करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एक जो है कि जैसे है वैसे एक्सेप्ट अस एज इट इज। उसके लिए हम उनको क्या करेंगे, हम उनको बात तो कर नहीं सकते कि हाँ तू ऐसे है, तू डाउन्स का है, तू अलग दिखता है, सो एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट वर्क। हाँ, सो हमने एक छोट बुक बनाया है, उसमें हमने एक फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। वो कार्ड के साथ हम बच्चों के लिए हम हेल्प उनको कर सकते हैं। एक ये मिरर में देख रहे हैं आप सबको, ये दिख रहा है? हाँ कलिका मैम, दिख रहा है। हाँ हाँ, ये जो है ये एक मिरर है। एक मिरर में एक लड़की अपना हेलो, हाँ, अपनी इमेज देख रही है। हाँ, इमेज देख के ये देख, एक लड़का और एक लड़की अपनी इमेज देख रही है। हाँ,
ये देख के कि प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंजेस हमारे में आए हैं, मैं कैसे दिख रही हूँ, ये हमको उनको समझाना है कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आप में आने वाले हैं, क्या चेंजेस आपके आने के बाद आपको कैसा लगेगा। ये सारी बातें एक मिरर के साथ वो करते हैं, जैसे हमको एक मॉड्यूल करके उनको सारी चीजें बतानी है। ये क्या हुआ, ये है, ये जो बड़े होने के बाद, हाँ, कि हम अपने अपने शरीर का ध्यान कैसे रख सकते हैं, हम अपने अपने शरीर को अच्छी तरह से कैसे देख सकते हैं, ये अलग अलग चीजें हम ये मॉडल के थ्रू उनके साथ बात कर सकते हैं। आज आपको थोड़ा कठिन नहीं तो ये लगेगा, लेकिन क्योंकि अपने पास 1 ही घंटा है, उसमें से आधा घंटा अपने पास बचा है, तो बाद में लेकिन ये आप पढ़ेंगे, आप हम उसके साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंगली हम उनके साथ काम कर सकेंगे। नेक्स्ट हमने कि हम अलग क्यों है, हमारे में वो प्यूबर्टी के चेंजेस कैसे आ रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं। हमने सुना देखा था कि ये बच्चों को बियर्ड और ये आती है, तो शेविंग कैसे करना चाहिए। हाँ, ये शेविंग कर रहे हैं पापा, ये शेविंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बड़े हो गए हैं, इनमें चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस आप में भी आ रहे हैं, आप भी बड़े हो रहे हैं। सो ये कुछ अलग नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि ये अलग दिख रहा है, कोई उनके यहाँ मजाक बनाते हैं, द पीपल लाफ देम, स्कूल में उनका अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए हमको ये कार्ड से अलग अलग, नहीं तो फोटोग्राफ से एक उनका एल्बम बना के हम उनके साथ बात कर सकते हैं। उसमें कि ये जैसा पेड़ है, ये पेड़ भी बड़ा हो रहा है, उसमें पानी डालो, उसमें खाद डालो, उसमें तो ये करो, तो गार्डनिंग के डिफरेंट प्रोसेस से ये पौधा बढ़ रहा है। वैसे ही अलग अलग अपने शरीर में जो है वो उनसे सब चेंजेस आपके शरीर में दिख रहे हैं, और आप बड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने शर्ट पैंट पहना है, जो पहले आप छोटी पैंट और छोटा टी शर्ट पहनते थे। अपने आइडिया से इसमें भी हम अपना ग्रुप में कैसे कैसे बच्चे हैं, उसमें साथ भी हम थोड़ा सा उनको इलेबोरेट करके चेंजेस करके उनके साथ बात कर सकते हैं। ये ऐसे होने के बाद नेक्स्ट हम उनके एक स्टेप जाएंगे कि टच। आज तक हम बहुत से बात व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, ये हम उनको सिखाते हैं। हाँ, कि यहाँ पे कलिका टच मैम, किया। हेलो, हाँ कलिका मैम सॉरी, आप थोड़ा इंग्लिश भी ऐड करना बीच में, ओके ठीक? ओके ऑडियंस सम ऑफ देम रिक्वायर इंग्लिश। या ओके। यस, थैंक यू। इन स्कूल from 9 to 10 years there, we always taught them ki what is bad touch and what is good touch. Huh? Don't allow to people touch to your chest, even in stomach, even in buttocks. So how we react? Huh? We always taught them ki these are the good touch, these are the bad touch. But then sometime we realize that we teach them कि what are the dislike and like, हाँ? कि वो कौन से टच है जो हमको अच्छे लगते हैं और हमको अच्छे नहीं लगते हैं, ये हमको उनको सिखाना है। सो वी मेक दिस कार्ड्स कि हम छोटे छोटे चीज से व्हेन द स्टूडेंट्स आर टेकिंग बाथ, they like warm water, not cold water. But we insist to take a bath with a cold water, huh? Because there is a summer outside. So it is compulsory to take bath from a cold water. But he doesn't like to take a bath cold water. He wants the touch of warm water. तो ये जो टच है, ये जो है वो हम उनको बोलते हैं कि ये आपको अपने तरीके से उनको बताना है
कि ये टच आपको अच्छा लग रहा है या आपको वार्म वाटर का टच अच्छा लग रहा है. सो यूज वार्म वाटर while taking a bath. Don't insist कि only on we want to take bath from cold water, so that only you take bath from the cold water. Huh? Don't insist. हाँ, फर्स्ट टाइम आपको उनकी ट्रायल एरर बहुत सी बार लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा भी हार्ड लगेगा, लेकिन आप जैसे हम उनके साथ काम करेंगे उनको वो तब हम अपने को ये बात उनके साथ अच्छी लगेगी. मैम बेसिकली आप कह रहे हैं कि यू स्टार्ट विथ वार्म एंड कोल्ड वाटर एक्टिविटी वेयर वी मेक देम हाँ. रियलाइज व्हाट दे आर लाइकिंग एंड व्हाट दे आर नॉट लाइकिंग. हाँ. हाँ. ओके ओके, गॉट इट मैम, गॉट इट. हाँ. हम उसका दोनों का उनको टच देंगे, स्पर्श देंगे कि पानी डाल के. जब वो ऑटिस्टिक बच्चे होंगे तो वो हाथ से ना बोल देंगे, हाँ पैर अंदर लेंगे, जो उनकी टिपिकल बॉडी लैंग्वेजेस होती है, तो वो हिसाब से हमको पता चल जाता है कि उनको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. बहुत सी बार अगेन इन द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी समटाइम दे आर डूइंग अ मास्टरबेट. हाँ, ये मास्टरबेटिंग के टाइम उनको बहुत से बार हाँ वार्म वाटर भी अच्छा लगेगा, बिकॉज इट गिव्स फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस समटाइम. हाँ, तो ये भी हमको बहुत से बार उन बच्चों के साथ काम करके हमको समझ में आ सकता है कि उनको क्या चीज में पसंद आते हैं. समटाइम उनको पहले कोल्ड अच्छा लगता होगा, लेकिन हमारे एक ऐसा एग्जाम्पल था कि ड्यूरिंग द मास्टरबेटिंग he feel कि वार्मनेस ऑफ आयरन. हाँ, so वो वार्मनेस उनको इतना उसको जॉयफुल और इतना उसका आनंद दे रहा था कि उसको वही फीलिंग अच्छी लगती थी. हम उसके ऊपर बाद में आएंगे और ये बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे हर एक के साथ कि क्या क्या है. उसमें और एक भी है कि हम बहुत से टाइम हमारे पेरेंट्स लड़कियों के नहीं तो लड़कों के पैर दबाते हैं. हाँ, कि दे फील कि दे आर टायर्ड. हाँ, सो जस्ट गिव देम रिलैक्स मूव, सो दे उनके पैर उनके दबाते हैं. बट एज द टाइम द बॉय और द गर्ल, he or she may not like this touch. कि उसकी वो he don't have any priority कि मुझे मेरे पैर दबा दो. हमको लगता है कि वो थक गया है, पर उसकी प्रायोरिटी वो बेस नहीं है उसको ही डिसलाइक टू दिस एक्शन. सो वो टाइम पे हमको वो स्टॉप करना है. भले वो खेल के आवे, भले वो दिन भर बहुत थका हुआ है, लेकिन हमको उसकी वो प्रायोरिटी और उसका वो टच को हमको सम्मान देना है, उसका उसमें अपने को उसकी हेल्प करनी है. डोंट इग्नोर कि वो एक्चुअली वो करता है ना करने दो. डोंट इग्नोर दिस. इवन इन दिस puberty period, some students, some girls or boys, they कलिका मैम, वेट, कलिका मैम आप म्यूट पे चले गए. मैडम आवाज नहीं आ रहा है. तो यस यस हेलो. यस. हाँ, अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है. हाँ, तो वो टाइम पे बहुत से हमारे रिलेटिव्स और दे जस्ट ओके गुड ऐसा करके चबी चिक्स, और दे ऑलवेज टेक चबी चिक्स करके उनका मजाक और ये सब करते हैं, उनको किस करते हैं. हाँ, बट समटाइम दे डोंट लाइक दिस. हाँ, कि नहीं अभी नहीं चाहिए वो. हाँ, हमको अच्छा नहीं लगता है. तो वो जब हाँ नो बोल सकते हैं, नहीं तो हैंड स्ट्रेट करके उनको ना कर सकते उनके बॉडी लैंग्वेज से, तो अपने को स्टॉप करना है. नहीं तो हमको बोलना चाहिए हमारे रिलेटिव्स को कि नहीं उसको ये नहीं पसंद है. सो डोंट डू दैट. हाँ, ओनली शेक हैंड और टेक और उनके साथ जस्ट कम्युनिकेट विथ वर्बली. हाँ, सो दे वो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा. बहुत सी बार उनको ऐसा लगता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बातें करें. हमारे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं ये थोड़ा सा बोल सकती हूँ कि उनको ऐसा लगता था कि ग्रैंड मदर के साथ
just go and hug her and sit with her. So he like every time उसको ऐसा ही लगता था, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी थी. हम वो टाइम पे ऐसा हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि अरे ऐसा हुआ तो उसके मन में क्या होगा. Always he come and hug his her grandmother. So it's not good. वो सबको ऐसा करेगा नहीं. हमको वो थोड़ा डीपली जाके उसके साथ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसको वो सिक्योरिटी पसंद है कि someone who is उसके साथ खड़ा है, वो उसकी फीलिंग होती है. तो वो फीलिंग से हमको उसको समझाना है और उसकी बात हमको समझ में लेनी. और एक इसमें होता है कि इमोशंस, द थर्ड स्टेप और ये ऑफ द सेक्सुअलिटी इज द इमोशंस. देयर आर द डिफरेंट इमोशंस in our mind, like happiness, sad, चिंता, cry. अलग अलग टाइप्स की इमोशंस हमारे मन में रहती है. वो इमोशंस का एक साथ में वो सिचुएशन के साथ वो हैंडल नहीं कर सकते. They can't handle their emotions with situation. बहुत से बार सिचुएशंस अलग होती है, इमोशंस अलग होते हैं. So emotions and situation never go hand in hand. So we always create such models and give a different with sessions कि actually joyful, sadness, happy mood, ये कैसे होता है, ये क्या होता है. पजेसिवनेस, बहुत से टाइम पजेसिवनेस रहता है उनके माइंड में. ऑलवेज हम कुछ एक मॉडल ऐसा करते हैं कि ना रेनी सीजन, फर्स्ट हमारी जो बारिश होती है उसमें जब हम दिखते हैं वो आनंद ही अलग होता है. वो उत्साह, वो आनंद, वो जो इमोशंस है वो उनको हमको बतानी होगी कि वो इट्स अ वेरी इट गिव्स अ वेरी हैप्पीनेस टू अस कि अरे पहली बारिश है. वो जो है वो हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. और हमने वो सब मॉडल्स हमारे एक्चुअल स्कूल्स में, एक्चुअल हमारे सेंटर्स में हमने क्रिएट किए कि हम एक शॉवर से वो स्प्रिंकल करें और वो जब पानी आता है तो उनके इमोशंस के फोटोज निकाल के उनको दिखा सकते हैं कि क्या है ये. तो उसी प्रकार से हमने ऐसे ही अलग अलग मॉडल्स हमने बनाए हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है. ये जो मूड्स के हिसाब से इमोशंस के ऊपर बहुत अपने को काम करना पड़ेगा. और एक्चुअली इट्स अ माइलस्टोन ऑफ द सेक्सुअलिटी कि हम बात करें तो इमोशंस, इसमें पजेसिवनेस बहुत आ जाता है और वही डेवलप उसमें से हुआ तो ये बहुत अलग दिशा में मूड स्विंग्स में जाता है. तो हमको बहुत से बार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. उसमें और एक होता है, और एक स्टेप है कि फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, मैत्री, वो फ्रेंडशिप और उनमें आजकल हम जो बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है, उनको वो डेफिनेशंस ऑफ और हम ऐसा बोले कि डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप दे कांट अंडरस्टैंड. दे ओनली अंडरस्टैंड फ्रेंड्स और उसमें ही वो सब देखते हैं. दिस all our characters in the same person or same person which is very close to them. First of all, एक तो टीचर उनकी बहुत क्लोज रहती है, फ्रेंड्स उनके क्लोज रहते हैं, तो उसमें ही वो सारे कलर्स देखते हैं. हमारे इसमें हम जब फ्रेंड्स बोलते हैं तो जस्ट कि एक बेस्ट फ्रेंड है, ये एक फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, उनको वो समझ में नहीं आता है. हम
थोड़ा सा अलग वे से बात करें तो उनको वो खाली स्ट्रेट बात समझ में आती है। हाँ, घुमा फिरा के थोड़ी बात की तो उनको नहीं समझ में आता है। तो ऑलवेज व्हेन वी आर टॉकिंग विथ अवर स्टूडेंट्स और विथ अवर चिल्ड्रंस, give us simple instructions, talk with a very simple lines. Don't talk or don't use words which have different colors or which have a different shades of emotions. They don't understand. तो इसमें उनका जमलिंग बहुत हो जाता है। क्योंकि उनको हम अलग बोलते हैं, हमारा मीनिंग अलग होता है, उसमें से उनको क्या लेना है वो उनको नहीं समझ में आ जाता है। तो इसलिए वो बहुत ही अलग अलग उनके माइंड में हो जाता है। एक तो एक ऐसा है कि हम जब उनके साथ एज अ फ्रेंडशिप और एज ए बात कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल उनको हम देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए। क्योंकि हम एक बार बोलते हैं कि आप बड़े हो गए हो, हाँ, आपको बड़ों जैसा बात करनी है, बड़ों जैसा सोचना है। सो वो आजकल टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, पेपर, ये इन सबका देख के वो अलग अलग माइंड से उनके अलग अलग विचार हो जाते हैं। वहां पे ही हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। थोड़ा उनके साथ उनकी जैसी हम बात करने, हेल्प करना है उनको। फ्रेंडशिप के बारे में हम उनसे बात करें तो उनको बोलना है कि फ्रेंडशिप माने कि ना, उनको ऐसा है कि मुझे शाहरुख खान जैसे बनना है। जो एग्जाम्पल्स जो हम एवरीडे हमारे साथ जो बच्चों के आते हैं, वो हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि शाहरुख खान ने नहीं किया है क्या, शाहरुख खान ने किस किया है, शाहरुख खान ने उसको हक किया है। इफ ही कैन डू तो व्हाई आई कांट। तो मैं भी वो करूंगा, इवन आई कैन डू दिस। आई एम ऑल्सो बिगर। देखो मेरी हाइट बढ़ गई है। क्योंकि हमने उसको ये सारी चीजें धीरे 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 उसको बताई है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि दे एक्ट एज अ हीरो। उनको टीवी और ये हीरो उनका आर द आइडियल्स ऑफ अवर चिल्ड्रन। तो हमको उनके आइडियल्स थोड़े चेंज करना है। नॉट कि ये गलत है, ये नहीं, पर वो टीवी पे है, वो पिक्चर है, वो रियलिटी नहीं है। वो उनको अलग अलग वे से बताना है। हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने टीचर में फ्रेंड्स देखते हैं, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है, उनके साथ उनका प्यार होता है, उनके साथ उनकी, वो बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो रेड रोज देते हैं, सब करते हैं, माँ होती है, सब बहुत से टीचर हैज टू प्ले द डिफरेंट रोल्स विद अवर चिल्ड्रन। सो द फर्स्ट इज देयर कि आपकी फ्रेंड्स है तो उसको हेल्प करो, भले वो अपनी, क्योंकि उनको लड़कियों के साथ उनको अच्छा लगता है बात करने के लिए, लीडरशिप अच्छी लगती है। सो कि उनको हेल्प करो, उनको वॉकर दो। इफ ही इज अ सीपी चाइल्ड तो उनको वॉकर दो, उनको हेल्प करो चलने के लिए, उनका होमवर्क करके दो, उनको लिखने के लिए हेल्प करो। सो ये सारा करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं तो हमको उनको फ्रेंड्स के बारे में अलग 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 बातें सिखानी है कि जो वो समझे कि ये खाली प्यार, हग, किस, ये जो देखते हैं वो रियली ऑलवेज बराबर है या नहीं। उनके लिए बहुत से चीजें, हम प्यूबर्टी में आते हैं तो मास्टरबेटिंग एक बहुत सी बार हमको ये प्रॉब्लम्स वी फेस, all teachers and all the parents in house, in out of inside or outside the home or even in the school। तो हमको उनको एक चार्ट बना के देना है, व्हाट इज द मास्टरबेटिंग, ये उनको कैसे तरीके से करना चाहिए, ये उनको बराबर से समझाना चाहिए। अगेन हमने ऐसे बहुत से अलग अलग फ्लैश कार्ड्स और ये बनाए हैं और उसके हिसाब से हमने उनको मास्टरबेटिंग हम उनको सिखा सकते हैं और सिखाते हैं कि एग्जैक्टली ये गलत नहीं है।
उसको रोकना, कितने बार, कहाँ, ये हमको उनको सिखाना पड़ेगा। हमको एक्चुअली उनके साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, ये गलत नहीं है, हमने उनको रोका तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। हाँ, ये कहाँ करना है, ये अपने ही प्राइवेट एरिया में करना है, जहाँ पे यू आर अलोन, nobody is in your room, so this is your private time, private place, or not in front of the people, but do it in the private place. It is not a bad thing. Huh? Why you are doing this? So school or something, some give a different exercise or swimming exercise, do running or give football exercise. So they compromise with their urge. So all this is not a good solution for our children, that to compromise our urge. Huh? Not to divert them, but हमको ये सोचना है कि हाउ टू उनको रिलैक्स मोड पे कैसा करे, हमको उनको सॉल्यूशंस देने हैं। हम उनको पिक्चर से नहीं तो हमको करके हमको उनको बताना है कि ये मास्टरबेटिंग करने के टाइम हफ्ते में उनको एक बराबर शेड्यूल देना चाहिए। कितना टाइम, कितने आवर और कितने दिन में कैसे आपको करना है, कहाँ करना है, गो टू, और आने के बाद आपको कौन से साइन से बताना है। सो ये आपको उनसे साथ बात करनी है। मास्टरबेटिंग के बाद ये एक वन ऑफ द स्टेप है, और वहां पे ही लड़के, गर्ल्स एंड बॉयज आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत से टाइम पे in school or in our homes or houses also, parents or teachers do that when they are have urge to do the masturbate, we treat as chalo bhago, you give do the 3 or 4 laps of running, swimming. So जब हमको पानी पीना है, we thirsty, so we want only a water, tap water, not also we want any syrup, any thumbs up or any cold drinks or any soft drinks or any hard drinks. We only want tap water to अपनी थर्स्ट, अपने जो है वो अपने को रिलैक्स करने के लिए। तो इनको भी जब वो पॉइंट आए, तो वो आने के बाद कौन से भी चीजें उनको नहीं पसंद आएगी, और आएगी तो उनका बिहेवियर प्रॉब्लम्स वहां पे आ जाएगा कि वो दे स्टार्टेड बीटिंग, दे स्टार्टिंग टू मेक लाउड नॉइज, और समटाइम्स दे वो अपने आप को ही कुछ कर बैठते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स, दे स्टार्ट developing these problems, or that is the main behavior problems we always facing. So हमको पहले ही उनको ये सब when they are in 9 or at the age of 10 or at the age of 9, 10 or 11, वही एज से हमको उनको थोड़ी थोड़ी बातें उनके साथ शेयर करनी चाहिए। So मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप में तो फ्रेंड्स, ट्रीट एज अ फ्रेंड्स, कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो ही वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर सकेंगे। बहुत से टाइम लड़कियां जो प्यूबर्टी एज में आती है, तो दे स्टार्टेड देयर पीरियड्स, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इन दोज डेज actually what is period, what is menstrual cycle, so उनमें क्या क्या there is a differences in our body or in our mind, so वो हमको उनको बताना पड़ेगा कि menstrual cycle exactly क्या होती है, हमको पैड्स कैसे लेना है, कैसे ऑटिस्टिक लड़कियां होंगी तो उनको बराबर से पैंट को कैसे पैड लगाने हैं, आउटसाइड, इनसाइड, फ्रंट कहाँ पे लगाना है, कब चेंज करना है, उसमें क्या क्या होता है, हमारे माइंड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये मैं अगेन आई एम टॉकिंग कि according to their ability, according to their
डिसेबिलिटी, हमको वो थोड़ा थोड़ा कैसे उनके साथ बात करनी है, ये हमारे ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड है। जो हमारा एग्जाम्पल, जो 22 साल के बाद उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, तो एक्चुअली हर IQ इज 28, 30 or 32. So she don't need this type of conversation at the age of her physical age 11 or 12. हाँ, क्योंकि उसको उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसकी जरूरत आई 22, 23 when her actual physical age is 22 and her mental age is 10. When she is 18, her mental age is 7 or 6. So there is no उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था कि ये सारी बातें उसको समझावे। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड एबिलिटी हम उनके साथ वो बातें डाइल्यूट करके उनके साथ वो एक्सपेरिमेंटली हम बात कर सकते हैं। हम अब एक्चुअली सेक्सुअलिटी ये जो है वो हर एक इंसान का अधिकार है। हाँ, मेबी नॉर्मल और मेबी ही इज अ डिसेबल। हाँ, वो सबका अधिकार है और वो सबका अधिकार उनके उनके एबिलिटी के अनुसार हमको उनको देना है, नॉट उनको उनका कम करना है। डोंट ऐसा मत करो कि उनको देना ही नहीं है, तो हमारे बिहेवियर इश्यू बढ़ेंगे। मुझे मालूम नहीं कि अभी अभी जो वर्कशॉप में है उनके बच्चे क्या क्या एज से है, लेकिन द एज ऑफ अबाउ 30, 20, the parents of their children, the age above the 25, they always think about their marriage. Huh? This is the last step of our sexuality. Huh? कि really marriages works for them. ये बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे बात है। हाँ, ये कौन सी भी बात हर एक को हर एक के नहीं लगा सकते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैज अलग अलग डिफरेंट सेक्सुअलिटी अर्ज। हाँ, सो देयर इज अ डिफरेंट रूल्स और देयर इज अ डिफरेंट थिंग्स टू शेयर विथ देम। बेस और स्टेप्स अपने सेम है, लेकिन कैसे और कैसे डाइल्यूट और कैसे एलाबोरेट करके बताना है वो अपने एज ग्रुप और अपनी डिसेबिलिटीज के हिसाब से है। बहुत सी सारी चीजें हैं कि उनको हम आनंद दे सकते हैं। हम उनको छोटी छोटी छोटा टच होता है, व्हाट दे फील अबाउट आवर फ्रेंड्स, जस्ट टच हिज और हर हैंड, just give a pencil or pen, or while giving a pencil or pen, when they are touch their fingers, so they feel happy. So हम क्यों ये रोके? हाँ, हम भी जब कॉलेज, when we are in that age, when we are going college or a college student, we also like these things. हमको भी अच्छा लगता था वो लेकिन हम वो जब बात करते हैं तब हम फील कि we are a normal. So वो हमको करना है। It's right. Why even in the college when we talk about the normal child at the his age is between 18 or 20, he is going to college. So we when we communicate her, so do you have a girlfriend? Do you have a boyfriend? No. Why? What's wrong with you? So when we communicate, we always like to communicate their language with their language, कि जो उनको अच्छा लगे। हाँ, हम टेक्नो savvy, आई एम लिटिल बिट लेस टेक्नो savvy, लेकिन जो हम उनके साथ रहते हैं तो उनको और फील अच्छा आता है। तो ऑलवेज हमारे स्पेशल बच्चों के साथ भी वो अधिकार है, ही और शी ऑल्सो हैव अ राइट टू मेक अ फ्रेंड्स, हाँ, टू टच विथ देम। हाँ, we also we हमको ध्यान रखना है कि the level of their urge or their thinking, because they don't know, they don't understand कि कहाँ पे वो कहाँ करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं। So we give the training of
this session, this subject to how to masturbate, where it is, कहाँ करना है, कहाँ जाना है, क्या साइन यूज करनी है, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, तो ये हमको बार बार सिखाना और करना पड़ेगा. तो मुझे लगता है वनीसा मैंने बहुत सी चीजें की है कवर, तो टाइम के हिसाब से हम बात में भी कुछ अलग वे से कर सकते हैं. कैसा Yes, yes, अभी? ma'am. It was really informative, and I think for a first session for the parents, we would like to hear from you in the chat box also. I think Okay. ये पहला session के लिए for an introduction, I think Alika ma'am, thank you so much. It has really opened our minds to thinking about these questions and these ideas. Like जो हम hesitate करते हैं सुनने या बात करने के लिए, पर हमें पता है, we know that these problems are like we will face for our children when they grow up. हाँ. Riddhi, you would like to add something? Yes, Yes. Yes, Mrs. Manjumdar, thank you so much. बहुत सारे questions आए हैं. Maybe we हाँ. can answer those questions now. हाँ. ठीक है, so I'll start taking questions one at a time. पहले आपने जब भी Okay. जो book mention की थी, उसमें उन्होंने हाँ. बोला कि जो book है, आपको मेरा आवाज आ रहा है ठीक से, right? आ रहा है. So हाँ. how do you get the book which you've mentioned? Okay. हाँ. कहाँ से मिलेगा ना? Correct, yes. Yes. कुछ कॉपीज जो है मैं इधर आपके इधर वनीसा के इधर मैं रख सकती हूँ. हाँ, तो शी कैन डिस्ट्रीब्यूट whoever want. हाँ. sure. 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 So But it Dr. is Bula in Lakshmi, Marathi. It is in a Marathi. So कैसे वो कैसे हो पा रहा है वो देख लेंगे. हाँ. okay. So yes, so Dr. Bula Lakshmi, हमारा सेंटर पुणे में है, तो पुणे में मिसेस मंजूमदार रख देगी बुक्स, और अगर आपको चाहिए we will try sending it across. We can do something for it. Okay. Yes. Is there a soft copy available by any chance? No, soft copy is not available. We Okay. even we have those children who are blind, so also in a braille lipi we read this copy. So Okay. ऐसा भी जिनका है वो हम उसको ये भी कर सकते हैं. Make sense. Okay, no problem. फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, बीटी नाम डाला है. Ma'am, instead of flashcards, can we show them the real things, like making them stand in front of the mirror and then show the parts of the bodies? Is that okay? Okay. हम वो कर सकते हैं. और एक्चुअली क्या है कि जो फ्लैश कार्ड्स है ना, वो अभी मैं 1 घंटे में वो समझ में नहीं आएगा. तो जब हम वो सेशन जरा लेंगे ना, तो बहुत से इलाबोरेट करके समझा सकते हैं. इसलिए मैंने वो इसमें डाला नहीं, क्योंकि और ये बढ़ती है कि क्या है एक्चुअली, कैसे यूज करना है, रियली ये करना है नहीं करना है, वो भी थोड़ा सा है. इसीलिए एक्चुअल हमारा जब हम सेशंस कुछ अरेंज कर सकते हैं ना, तब हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे अच्छे से. Yeah. Okay, so I think what the parent meant was कि हम जब भी parts of bodies दिखाते हैं, तो Okay. उसमें instead of showing flashcards, can we actually make the child stand in front of the mirror and show the parts of the bodies? एग्जैक्टली You वो can. भी कर सकते हैं. और हमारे यहाँ हमने बहुत से डॉक्टर के हेल्प आउट से हमने एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, बड़ा सा हमने बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स. सो हम वो ऑलवेज बच्चों को हम एक वो पजल के हिसाब से देते हैं कि वो पार्ट्स अलग अलग रखते हैं और सॉल्व दिस पजल्स, कहाँ पे कहाँ जाना है, कौन सा पार्ट कहाँ रखना है, क्या करना है, तो वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है. इट्स अराउंड अबाउट 5 feet. तो वो हिसाब से Interesting. हमने वो किया है. हाँ. अच्छी बात है. Yeah, this is a very good idea. Okay, हाँ. फिर और एक क्वेश्चन पूछा है, प्रतीक्षा नाम है पेरेंट्स का. At what age we should start explaining about masturbation? मैं वही है कि अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से है उनका, कि अपना बॉर्डर लाइन के हिसाब से होंगे तो 10 या 12 years इट्स अ वेरी कॉमन एज कि हम उसमें से उनको सिखाना चालू कर सकते हैं मास्टरबेटिंग.
अगर वो उनका IQ और एज कम है 28, 30, 32, तो नॉट नेसेसरी कि 10 की एज में सिखाना जरूरी है. इट्स अबाउट 15 to 16 ईयर्स. 15-16 साल के बाद हम उसको सिखा सकते हैं. पर आइडियली बॉर्डर लाइन डाउन सिंड्रोम होगा और इवन इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज में होंगे तो 10 या 11, 10 to 12 एट द एज ऑफ 10 or 12. Correct. Okay, Tapasya is a parent. उन्होंने बोला what is the right age to teach about adolescence and puberty for a boy? प्यूबर्टी इज ये है कि 11 to 15 हम एक बात करते हैं कि प्यूबर्टी एज इज 11 to 15. आफ्टर दैट इज द एडोलेसेंस स्टेज में आ जाता है 16, 17 के. और मैं वापस एक बार बोल सकती हूँ कि 10 या 12, 10 एट द एज ऑफ 10 इट इज नॉट रियली वर्क कि मास्टरबेटिंग सिखाना है. एक्चुअली फर्स्ट उनको बॉडी पार्ट सिखावे, जरूरी क्या है, उसको अर्ज है क्या मास्टरबेटिंग के लिए, उसके पार्ट्स को डेवलप हुए है क्या. बहुत से बच्चों को एट द एज ऑफ 16 वन ऑफ माय स्टूडेंट इज नॉट डेवलप देयर पेनिस, सो वी कैंट टीच देम कि व्हाट इज द मास्टरबेट. After some doctor taking some medicines from doctors, he developed their penis and then we taught him. तो ये थोड़ा Correct. सा हम solve करेंगे. हाँ, Make sense. और उनको स्पेसिफिकली वो कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत नहीं है ना कि प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलेसेंस क्या होता है. करेक्ट. सो यू डोंट हैव टू टीच दैट टू देम. तो जो एज का फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन सी भी एज में हो. बड़ा हो तपस्या गया जी. है. हाँ, बड़ा हो गया है, हाइट, वेट और उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके हिप्स में वगैरह सब चेंजेस दिखने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वी नो कि अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं. इवन देयर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट. Okay, great. There is a feedback saying that we will not be able to understand Marathi. Oh. Book का भी पूछा है. Books कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं? Which languages do we have it in? एक्चुअली उनका इंग्लिश में काम हो रहा है तो उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी तो आई विल जस्ट चेक कि सॉफ्ट कॉपी है क्या उनकी. हाँ, तो मैं Sure. Yes, many parents have said that the session was very helpful. It was super informative. It was a nice eye opener. So I see a lot of good comments coming in. How to start explaining at basic level for small kids? बेसिक लेवल पे जो है कि लाइक, डिसलाइक, टच, इमोशंस, वो हम एट द एज ऑफ 9, 10 से सिखा सकते हैं. CP बच्चे 10 के बाद थोड़ा थिंकिंग लेवल उनकी अच्छी हो जाती है और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. हाँ, तो वो टाइम से हम उनको ये बातें सिखा सकते हैं. इवन Great. लड़कियों में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स कब आने हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या तकलीफ हो सकती है, ये भी हम उनको बात कर सकते हैं. Great. So there are many parents who've joined. One parent has said that they've come from Hyderabad, which is great. काफी सारे लोग अलग-अलग जगह से आए हैं. One Okay. parent wants to know कि वापस आप कोई continuation में इसमें सेशन कुछ करवाने वाले हो. Mr. हेम कुमार wants to know. ये सेशन क्या हम कंटिन्यूएशन में अभी आप जब कैसे आप डिसाइड Definitely. करेंगे. हम एक्चुअली हमने एक बात पर कल की थी शिवानी मैम से कि हम ऐसा होगा तो 10 का एक ग्रुप करेंगे, भले ऑनलाइन हम सब, और एक एक चीज हम उनको सिखा सकते हैं कि व्हाट इज इमोशंस, हाउ कैन वी हैंडल दिस. हाँ, एक्चुअली मास्टरबेटिंग ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि गुड क्या है इसमें, बैड क्या है उसमें, हार्मफुल क्या है, हम उसको हार्मफुल ना बनाते हुए कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो उसके बारे में भी हम एक सेशंस ले सकते हैं. For sure. So we have Mr. Rodriguez and family. उन्होंने बोला है कि it is very important to change the society's perspective towards sexuality. Sometimes it is difficult to even explain neurotypical children. So it's a good thing, Mrs. Manjumdar, that we have you here to actually help us with our special kids. Again, thank you very much. One more question from Disha. Ma'am, if child is a non-verbal child, in that case, how to make them understand good touch or bad touch, masturbation, उनको कैसे समझाए?
ही नॉन वर्बल है। Yes. हाँ, ओके ओके, जब वो नॉन वर्बल होंगे तो उनका आईक्यू क्या है वो पहले देखेंगे। हाँ, उसके बिहेवियर, उसका एज ग्रुप के हिसाब से उसका आईक्यू और अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है, वो हिसाब से हम उसको डिसलाइक, लाइक, गुड टच, बैड टच हम सिखा सकते हैं। और जो नॉन वर्बल बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, जो हमारे इधर भी 2 लड़कियां हमारी स्टूडेंट नॉन वर्बल है, तो हम उसको कभी भी उसको जैसे हमने कोल्ड और वार्म का दिया, तो हमने एक तरफ से उसको हाथ में कोल्ड दिया और एक तरफ से इमीडिएट वार्म दिया, तो वो फेंक देगी। नहीं तो हाथ वो कभी भी अपने को हाथ पकड़ने को अलाउ नहीं करेगी। हाँ, तो उसमें उस समझ जाना चाहिए कि उसको वो टच नहीं चाहिए, उसको वो अच्छा नहीं लगा है, उसको उससे तकलीफ हुई है। हाँ, नहीं तो ऑलवेज उनका है कि शोल्डर अंदर लेते हैं। बहुत से टाइम हम कुछ भी उसको हाथ लगावे तो हमारे शोल्डर से उसका हाथ रिफ्यूज करते हैं और शोल्डर अंदर लेते हैं। तो ये बातों से हमको समझ में आ जाता है कि बच्चे को वो अच्छा है या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अगर उनको समझाना है, सो फॉर एग्जाम्पल बच्चा नॉन वर्बल है, तो लैंग्वेज रिसीविंग कितना कितना होगा पता नहीं है, तो कैसे उनको हम समझा सकते हैं फिर? हमको उनको समझाना होगा कि पहले हमको सपोज है कि बारिश में हमको उनको लेके जाना है, वो फील देना है, वो जॉय उनको बहुत से बार उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लेकिन वो सीखे कैसे, वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि वो उसको हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आनंद हो रहा है या दुख हो रहा है या उसको नहीं आना है। लेकिन एक बार हम उसको, फर्स्ट टाइम हमने दिवाली में ऐसा एक ट्राई किया था हमारे स्टूडेंट के साथ कि उसको पटाखे से बहुत आवाज से, लाउड आवाज से उसको डर लगता था। और जब हम फुलबाजी बोलते हैं, फुलझड़ी, तो वो जो ये आती है उसकी, तो उससे वो डरती थी हाथ में लेने के लिए। लेकिन हम सबने लिया तो उसको अच्छा हुआ, तो हमने खाली उसको एक पहले स्टेप उतरने के लिए बोला कि जस्ट हमारे साथ आ जाओ, जस्ट स्टैंड विथ अस। हाँ, तो हमारे साथ खड़ी रही। हमारे साथ खड़े रहने के बाद हमने उसको हाथों से धीरे धीरे ऐसा किया कि हम उसको हाथ में, हाथ हमारे हाथ के ऊपर रखा, तो उसकी वो डर उसका चला गया। लेकिन वो एक ही या 2 ही बार कर सकते हैं, उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसका जो डर था वो गया और उसको वो हंसी आ गई कि ये बहुत अच्छा लग रहा है हाथ में करके। लेकिन उसको 2 के बाद उसको और एक दी तो उसको नहीं, उसने रिफ्यूज किया कि नहीं चाहिए मुझे अभी, अभी मैं आई एम हैप्पी विथ 2 फुलझड़ी, ऐसा। ओके, ओके, पर मेक ये सेंस। ऐसा एक में नहीं, 1-2 महीना सेशंस जरा करने पड़ते हैं। करेक्ट, आपको स्लोली स्लोली उनको एक्सपीरियंस करवा करवा के समझाना पड़ेगा, इज हाँ व्हाट आई एम हाँ अंडरस्टैंडिंग। हाँ हाँ। Correct. Isn't it better to talk about masturbation when the child or the individually actually starts doing it? वो खुद जब भी स्टार्ट करता है तभी उनको समझाए, वो बेटर नहीं है? आ, वो जब भी स्टार्ट करे तभी समझाना बेटर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पहले थोड़े से उसको, क्योंकि वो कहाँ पे तो देख के कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है ना। हाँ, एटलीस्ट वो आजकल यूट्यूब पे देख रहा है, कहाँ पे पिक्चर्स में देख रहा है, कहाँ पे सुना है, कहाँ पे न्यूज़पेपर में तो दिखता नहीं है, लेकिन कहाँ पे सुना है, फोन पे दिखा है या टीवी पे। सो आपको अगर मालूम है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसकी अच्छी है, हाँ, तो मैं एट द एज ऑफ 10 या 11 को उसको बताना चालू करूँ कि ये पार्ट क्या है, ये तुम्हारे बॉडी पार्ट्स है और इसमें ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि जब वो मास्टरबेटिंग करे और सिमन और सम ये बाहर आ जावे, हाँ, सो उनको मालूम नहीं होना चाहिए कि अभी कंट्रोल कैसे करना है, हाँ, अभी क्या करना है बाद में। हाँ, तो वो थोड़ा उनको सिखाना पड़ेगा, उनको पहले पहले से से ही थोड़ी थोड़ी बात करनी पड़ेगी। करेक्ट। ओके, और एक पेरेंट है लक्ष्मी जी, उनको भी फ्लैश कार्ड्स चाहिए, तो उनको प्लीज आप गाइड करो किस तरीके से फ्लैश कार्ड्स मिल पाएंगे उनको। हाँ, वैसे ही मैं आपके इधर हंसा के इधर भेज देती हूँ, पण फ्लैश कार्ड और ये ऑल आर इन मराठी, सो आई डोंट नो कि हाउ दे कैन अंडरस्टैंड और कितना उनको आएगा, पर हाँ मैं भेज श्योर, सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। श्योर, हाँ, श्योर। तो लक्ष्मी जी, इफ यू आर इन पुणे, our center is in Baner, Pan Card Club Road.
So if you are there, please feel free to walk in and we'll be happy to show you the flashcards. It's in Marathi, but Sorry, we'll ma'am, see we how are we in can help you. ma'am, we are in Bangalore, Karnataka. Okay. Okay. Do we have the soft Can you copy send of by it? post, ma'am? Yes, Yes, we can ma'am. send it by Book post. or flashcard? Okay, okay. Yes, Okay, so ma'am. we'll start sending it by post. Okay, Okay. ma'am. Ma'am, Okay. Marathi I cannot understand, ma'am. English version. Sure, See, we'll see what we can do. Didi, I think कि भले they can't understand or they can't read Marathi, but when they understand how so it will be very good कि okay, उनके साथ बच्चों के साथ काम करने के लिए. हाँ, एक बार हम Okay. ऐसा करेंगे फ्लैश कार्ड के साथ जिनको है उनका एक सेशन लेंगे कि हाउ इट वर्क्स, तो वो उनको अच्छा आसानी हो जाएगी. Sure. मिथुन पवार का क्वेश्चन है. मिस्टर मिथुन पूछ रहे हैं, how can we tell the child that an erotic scene in the film is not real and we shouldn't follow that behavior? मूवीज में कुछ उन्होंने देखा है, कुछ सीन्स, उनको कैसे बोलने का कि ये रियल नहीं है एंड यू शुड नॉट डू दिस? ये सारी चीजें 1-on-1 पे ही समझ में आ जाती है कि हम उनके साथ कैसे बात करें और कैसा नहीं. हम उनको रियल हीरो के साथ जब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि शाहरुख खान ने और काजोल के पिक्चर हमने देखे तो डाउन्स की लड़की ने जाके हक किया डाउन्स के बच्चे को. व्हेन हर देयर टीचर्स टोल्ड देम कि व्हाई डू दिस, तो उन्होंने इतना ये बताया कि मुझे उसका शर्ट बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैंने उसको एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैंने उसको हक किया. उन्होंने अलग लैंग्वेज से, पर द मीनिंग ऑफ द सिचुएशन इज दैट. सो ये कहाँ देखा? सो शाहरुख खान ने जब किया तो उसको किसी ने बोला, क्योंकि उसको कहाँ बोला, वो तो पिक्चर में 3 घंटा था, वो बोलेगा तो भी हमको थोड़ी उनको समझ में आने वाला है कि ये बोलने वाले हैं उसको. तो हमने उसको बाद में सचिन तेंदुलकर, बाकी के लोगों के भी ये दिखाए कि वो भी हीरो है, उन्होंने कैसा खेला, हमारे देश के लिए काम किया है. हमारे स्कूल में जो अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छे मौसी थे, अच्छे, उन्होंने क्या क्या किया, तो वो भी एक हीरो है. उनको पिक्चर, उनको बड़े स्क्रीन पे दिखा दिया तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग हुई कि उनके जो स्क्रीन पे दिखते हैं वो हीरो है. इसीलिए कि वापस कि उनका लेवल का हमको सोच के हमको उनको बताना पड़ेगा कि वो बराबर नहीं है. मारामारी जब वो करते हैं, दे आर फाइटिंग इन सीन देखते हैं, और वो फाइट सीन हमने उनको एज अ मॉडल के हिसाब से मारा, और वहां पे हमने एक सॉस और उसका रेड और स्केच पेन से रेड किया और ये अच्छा है क्या दिखाया, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि ये गलत है, ये तो उधर होता है, ये तो उधर होता है, इधर कहाँ होता है. सो लाइक दिस, वो उधर होता है, ये इधर नहीं होता है. हाँ, वो कभी भी शाहरुख खान वहां पे जब वो कहाँ पे जाते हो वहां करते क्या नहीं करते हैं, ओनली इन पिक्चर्स. तो उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल से हमको अलग अलग उनको बताना पड़ता Yes, Correct. So, just going to jump in, sorry. So for sure. parents who are requesting an English translation for this question, okay, so the question was, how do I tell my child that the erotic scenes in the films are not to be practiced at home, are not to be done at home and repeated at home? So Kalika ma'am is sharing that we should also, firstly, you can talk about all the good scenes, the appropriate habits that the actors are doing, and you can also talk about that there are many things. You can also talk about how unrealistic the fight scenes are in movies. Okay, like ma'am was saying that it's all paint and blood, for to show blood, it's not real, to help them understand that. Also, when they show that they are hitting someone and they show that red, you should ask, is it okay to remove blood to somebody till they bleed? Is that good? So, like in that way, you can help your children understand what is okay, what is not okay, what is good, what is है. bad. Yes, Kalika ma'am, I covered your points appropriately. Thank Okay. you so much, Miss Vanessa. Thank you, Kalika ma'am, for answering all the questions and being so patient with us so far. We have few more questions. So, Mrs. Vaishali wants to know, her son is already masturbating twice a day. How can we change that habit?
her child is autistic or Downs or which disability is having? Well, Sariji, you want to just tell us? If you can put it on the chat and we can then take it forward if you are around. Okay. Meanwhile, I'm hoping Vaishali ji are listening to us. You can tell us what is your child's need. Whether बहुत you- से बार according to their ability, again I told कि हफ्ते में 2 बार कर रहा है तो एक चार्ट पे दो कि उनको कि ये तुम्हारा मूवी टाइम है, ये तुम्हारा क्या मोबाइल देखने का टाइम है, ये तुम्हारा प्ले टाइम है, तो ये तुम्हारा मास्टरबेटिंग टाइम है। हाँ, हफ्ते में 1 बार होना चाहिए। आप उसको शेड्यूल डाल के दो, हाँ, कि इसके बाद ये नहीं करना है। एक अपना ये रहता है घड़ी के वॉच के हिसाब से उनको एक ये लगा के दो कि हाफ एन आवर 15 मिनट 10 मिनट के बाद मैं नॉक करूंगी, तो उसके नॉक करने के बाद आपका ये फिनिश होना चाहिए। हाँ, ये उसको बार बार बताना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होने वाला है ना 1 महीने में होने वाला है। तो क्योंकि बिहेवियर चेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, हीटिंग भी हो सकता है। आई डोंट नो द एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ हिज चाइल्ड, हाँ, लेकिन ये आ सकता है, तो वो हिसाब से हमको उससे बोलना है, कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए उसको। Sure. So basically, we are going to use behavior reinforcement. We are going to use a schedule for the child. So in a week, the child should be only allowed to masturbate maybe once in a week. When the child is actually into the activity, you can keep a visual timer for yourself and for the child in the room or in the private place where he's doing it. हाँ, Where और एक you can, हाँ, और एक Yes, है कि अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को इन्वॉल्व इन द डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट एक्टिविटीज। हाँ, हमको डाइवर्ट नहीं करना है, लेकिन हमको इन्वॉल्व करना है। डाइवर्जन के लिए एक्टिविटीज नहीं बढ़ानी है, तो उसका प्रोग्रेस और उसके लिए हमको एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी है, उसके अलग अलग टाइप की। तो ऑटोमेटिकली वो जो, क्योंकि बहुत से बच्चों को घर में कुछ काम या एक्टिविटी नहीं होती है, तो काम बैठे क्या करे, इट्स टाइम कैसे बिताए, तो इसके लिए भी वो करते हैं। तो हमको वो रीजंस भी पता होने चाहिए कि किसके लिए मास्टरबेटिंग चालू है। Correct. So I hope you all have understood. Basically, just help them be busy in other activities so that they are, active and doing something else, so that they don't get the time to do the activity of masturbation. Also set a visual. So after 10 minutes, 12 minutes of that activity within the week, you can just say time up. We have to come out, so that the child knows that it's time for them to get done. So one more question related to that is from a parent. Hello. Yes, hello, hi. Sorry to interrupt. I'm so sorry. I've been avidly listening, and the speaker has given a lot of information, good information. Look, I am a gynecologist and I've worked in this area for many years. Okay. Now, Okay. I'm so sorry I couldn't keep quiet because I differ from your opinions in certain matters. You have a huge audience with you, and the message that is going out from what I understand is that you can actually time these things or put a stop to it. I just want to ask one question, that sexual urges, do you feel they are normal? You feel they are normal? Yes, No. they are normal. No. Yes, they are normal. So this will happen with everybody. You cannot, if they want to masturbate every day, they should be allowed to, because pleasure keeps them also happy, and that is an urge, a natural urge that they feel, right? It is Exactly. just that we need to teach them which is the appropriate place to do, not to be doing all the time. That is because that will actually just cause injury to their private parts. So if there is this child who's been masturbating for 4 years, that child or that individual, adult, feels satisfied with doing it.
It affects their sensory inputs. It affects their behaviors. It is fine only telling them where to do it, how to do it so it's safe, cleaning up afterwards, and also explaining to them it is not something that they should be involving in all the time. But like you very rightly said, that they should also be involved in other activities. Primarily, if they are free and they touch themselves, if any of us touches our private parts, we'll all start feeling a sensation which is pleasurable. And you might want that sensation. There is also another question in the chat box where somebody has now become concerned that their boy or girl is not actually masturbating. It's fine. It's absolutely fine. So I was the one who asked that question, whether you should actually explain about it. I feel that you should explain about night emissions to all boys and to girls about menstruation. But when they start touching their bodies, then talk about masturbation. Because before that, if you are saying कि तुम यहाँ पे touch कर सकते हो, तुम्हें अच्छा लगेगा, like we already have this question, there might be somebody who's actually not interested in doing. We do not necessarily want them to go that way. So I'm very sorry I interrupted. I was just about to leave. No, it's Really okay. very sorry. Please don't mind. But No, no, it's a really good point. Huh. It's really good point. thank you. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Okay. Yes, thank you for adding your contribution. I think we are just everyone learning things together. So it is always Actually. good to get that perspective. We really appreciate that you found yourself as a safe space and you shared about it. This is a great perspective we can always take into consideration. And yes, we were coming to that question itself and instinctively even answered that if the child is not masturbating, we don't need to tell them and it's nothing abnormal Yes. about it. So Absolutely. I'm glad that you actually brought that up. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Moving on, there are few more questions that we are going to address. So we've already spoken, Mr. Mithun, about your son. It is totally fine. It is totally normal. Even though he's enjoying the music, which is having romantic songs, it is totally fine. He can enjoy that because there is a lot of other elements that he's seeing except for the romance. There are clothes, there are actors, there are these scenic backgrounds behind. So probably he's enjoying all of that. Moving on, I want the book and I'm in Hyderabad. So how can we get it? Even the flashcards. They can read Marathi. So we'll try posting it because there are many people who are asking. We'll see if we can actually post it. You may have to end up paying for the travel from Pune to whichever place we want, but we'll try coordinating. Please feel free to get in touch with us for it. Again, one more question from Mrs. Pinky Shah. My son is 8.5 years old and he touches a lot of his private parts while lying down. Pressing, is it stimming? How should I control? He's on moderate spectrum, low functioning. हाँ, अभी जो हमारी बात हो गई और अभी जैसे मैडम ने बताया कि वो कैसे हम ये करते हैं, तो उसके बारे में ही एक्चुअली एज के हिसाब से वो ज्यादा ये कर रहा होगा एक बात, और उनका मास्टरबेटिंग का, तो हम उनसे ये टाइम पे थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा कि ज्यादा सपोज हम करें तो उसका उनके ही शरीर को और उनको प्रॉब्लम हो सकता है क्या, कि ये उनको कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनका वो उनके रीजंस हमको उनको उसको समझाना पड़ेगा थोड़ा, कि ये ज्यादा टाइम हुआ तो कितना हार्मफुल हो सकता है और राइट कैसे हो सकता है, हार्मलेस होने के लिए हम कैसे कैसे क्या क्या बातें कर सकते हैं, और उसके बाद क्लीनिंग कैसा करना चाहिए, ये सारी चीजें उसको पहले से और थोड़ा सा उसको सिखाना पड़ेगा उसको। ओके, हेलो, बहुत से ये जो है ये सारे ये सब्जेक्ट पे ही हो गए, लेकिन ये थोड़ा सा 1-on-1 पे ज्यादा होगा क्योंकि हर एक की स्टेज और हर एक की एबिलिटी अलग अलग हो सकती है, तो हिस्ट्री अलग होती है, तो उसके जैसे उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग हो सकती है। करेक्ट। स्वाति बालाजी का क्वेश्चन है that the child is he touches his private parts and he puts his finger in his mouth. Anything that you would want to say for that? मुझे लगता है कि उसको
जैसे क्लीनिंग का हमको उसको समझाना पड़ेगा, हाँ, कि हाउ टू क्लीन आफ्टर द मास्टरबेटिंग, कैसा करना चाहिए, और वो ट्रेनिंग और उसको वो अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, वो उसके साथ थोड़ी सी बातें भी उसके साथ करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही उसको हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं। Sure. I also think, just to add on, since I'm going to have a workshop next Friday and it is going to be with behaviors, something from a special educator's perspective, if I can add, probably जब भी first time उन्होंने किया रहेगा, स्वाति बाला, and please unmute yourself and share, उन्होंने जब भी first time उन्होंने किया रहेगा, शायद आपने उसको attention दिया रहेगा, यानी आपने बोला रहेगा नहीं नहीं नहीं, this is not good, don't do. वो next. फर्स्टली मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए मैम। मैम Yes, please go हेलो ahead. मैम, ये मेरा सन जो है 9 इयर्स का है। वो दिन में लगभग पूरे 10 टाइम किसी टाइम भी है ना, वो अपने पेनिस को टच किया या एनिस को टच किया, उसका फिंगर मुंह अपने माउथ में डाला, बस अपने टंग को टच किया, वो डाला अपना हाथ पेनिस को टच किया, फिर टंग को टच किया, बस ऐसे ही करता है वो दिन में लगभग 10 टाइम जरूर रिपीट करता है। उसके अलावा अदर नो इश्यू। ओके, ये खाली पेनिस को टच करता है और मुंह में डालता है हाथ। हाँ, वो पेनिस को टच किया है और एनएस को टच किया और अपने टंग पे बस टच किया, उसके बस इतना ही करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। उसको सेंसरी का ये है कि ऑटिस्टिक है? यस मैम, वो ऑटिस्टिक है, 9 इयर्स का है। हाँ, सेंसरी का इश्यू होगा तो वही होता है कि सेंसरी का इश्यू होगा तो वो उसको फीलिंग अच्छा लगता होगा, तो वो जस्ट टच करता है, और वो जो पेनिस का आगे का सॉफ्टनेस या स्टिकीनेस उसको अच्छा लगता होगा बहुत से बार, तो उसके अच्छा उसके जैसा सेंसरी का आपके टच का थोड़ा सा देखिए कि वो क्या इफेक्ट होता है, क्या वही ये सेंसरी इशू में आ गया है। करेक्ट, तो काफी सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, शायद सेंसरी हो, शायद बिहेवियर भी। सेंसर। करेक्ट, सो बेस्ड ऑन व्हाट द चाइल्ड नीड इज, उसके ऊपर से वी कैन टेल, बट फिलहाल अभी के लिए समथिंग दैट वी कैन डू इज, मे बी आप बिहेवियर होगा तो प्लीज उसको अटेंशन मत दीजिए, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर वो करके आपको देख रहा है तो ही इज ट्राइंग टू सीक अटेंशन, वो अटेंशन सीक करने का ट्राई कर रहा है। करेक्ट मिसेस मंजूमदार, आपको क्या लगता है? हाँ, अटेंशन और सेंसरी का ही है कि उसको वो फील अच्छा लगता है कि बहुत से मेरे एब्सेंस में भी करता है। इनफैक्ट मैं रोकती हूँ तो वो वहां से चला जाएगा दूसरे रूम में और करेगा, वो मेरे एब्सेंस में भी करता है। हाँ, तो फिर इट इज नॉट अटेंशन, इट इज नॉट बिहेवियर, इट इज सेंसरी फॉर श्योर, उसका वो सेंसरी नीड है। We do have occupational therapists on board, so if you want we can help you with that, Swati Bala. Kanchi, are we there? Yes, Miss yes, Kanchi? yes. Yes, So do you want to I just address this wanted question? yeah. So I just wanted to clear that it is majorly a sensory part. So it might be because of sensory teaching, seeking of touch, or it might be because of smell. So you can do one thing, you can give him different textures for touch, sensory give him different types of touch, and you can give him different types of smell. तो घर पे हम touch कैसे देंगे? So for example, you can get different type of doormats, और उससे आप उसको उसमें walk करवाओ, उसमें crawl करवाओ, उससे touch आएगा। और एक पर्टिकुलर ब्रश आता है पूरी बॉडी पे ब्रशिंग करवाने के लिए, वो टेक्निक होती है। इफ यू वांट यू कैन टेक्स्ट अस एंड वी विल लेट यू नो द नेम ऑफ द ब्रश, तो यू कैन गेट दैट ब्रश और उससे आप उसको ब्रशिंग करवाओ। हम पूरा प्रोटोकॉल आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, सो यू स्टार्ट विद दैट। सेकेंडली, स्मेल जो सेंसेशन होता है, अगर वो स्मेल सेंसेशन सीख कर रहा है तो उसके लिए आप उसको घर में ही अलग अलग तरह का उसके रिस्ट पे चीजें लगा के दो और देन मेक हिम स्मेल इट। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक कपड़े के अंदर सारे जो खड़े मसाले होते हैं, हमारे होल स्पाइसेस होते हैं, आप उनको पैक कर दो और फिर वो उसको हाथ में दो स्मेल करने के लिए। सिमिलरली आप उसको थोड़ा सा एसेंशियल्स ऑयल्स अगर आपके पास हो, या कोई भी या तो कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, जो घर में अवेलेबल चीजें होती है जिनमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, जो नेचुरल चीजें होती है, नॉट द
सेंट्स जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं बच्चों के लिए, तो उनको अवॉइड करके जो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल चीजें होती हैं आप उसको वो दे सकते हो फॉर स्मेल। तो ये दो चीजें मेजर कंसर्न होता है, अगर बच्चा बार बार ये चीज कर रहा है तो ये या तो टच का सीख कर रहा है या स्मेल सीख कर रहा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। I hope this Thank you solved so your much. question a little bit. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much, Okay, ma'am. Kanchi Thank ma'am, you. for addressing this. Similar question आया है. Ma'am, can you please name the brush? My son has sensory Surgical issues. brush. It's Can you the name of the brush is Wheel Burger brush. can you just write it in the chat for all of us, please? Yeah. Right. Thank you so much. The son is 14 years old. Okay, going ahead, we have one more last question. My son is 24 years old and touches his penis and plays with it. How can we help this child? When we ask him, he says that it is itching. क्या वापस एक बार, बीच में सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, Okay, the question is कि there is this child 24-year-old का बच्चा है और हाँ? वो पेनिस के साथ खेलता है। जब भी उनको स्टॉप करने के लिए बोलते हो कि मत करो, तभी वो बोलता है कि उसको इच हो रहा है। जब वो बार बार सपोज बोल रहा होगा कि इचिंग हो रहा है, तो फर्स्ट उसके इनर गारमेंट्स भी एक बार चेक करवा लीजिए, क्योंकि हमारे कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आए हैं कि समर में भी वो ज्यादा इचिंग बढ़ता है। टाइट्स होंगे इनर गारमेंट्स तो बहुत से बार वो अनकंफर्टेबल होते हैं। बहुत से बार बच्चे वॉशरूम नहीं जाते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन, नहीं तो कुछ वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वहां से भी कुछ ईचिंग ज्यादा होती है। तो पहले वो हम चेक करवा लेते हैं, फिर उसके बाद ये नहीं होगा तो अगले इस पे मोड पे जा सकते हैं। ग्रेट। ओके, हेलो मैम। ईचिंग हो हेलो। रहा है तो शायद हो भी सकता है कि ऐसा नहीं कि ईचिंग नहीं होगा, तो वहां पे उसके जो इनर का सपोज, हाँ हाँ मिस वनेसा, आपको कुछ बोलना था? हाँ मैम, मुझे पूछना हेलो। था कि जो फ्लैश कार्ड है ना मैम, तो वो कौन सा रहेगा और कैसा रहेगा ना, मतलब हम लोगों ने अभी देखा, मगर और भी फोटो ग्रुप में डालेंगे तो अच्छा रहेगा ऐसा लगता है मुझे। तो क्या है, वो फ्लैश कार्ड के फोटो खाली डालेंगे ना तो आपको आप समझा एकदम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके हाँ हाँ पीछे थोड़ा सा अलग अलग थेरोटिकल माइंड है जिन्होंने ये सब हमने बनाया है। तो मुझे लगता है फ्लैश कार्ड कैसे यूज करें, एक हम ऐसा कुछ सेशन ले सकते हैं तो वो आप बाद में अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, ऐसा आई थॉट लाइक दिस। बराबर है Yes, दीदी, कलिका क्या मैम। कुछ अलग उसमें करना है अपने? आई थिंक बराबर है, हम देख सकते हैं तो भी फ्लैश कार्ड एक बार देख के अगर उसको थोड़ा और हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का ट्राई करेंगे हमारे हिसाब से, और फिर हाँ लगेगा कि हाँ ये ठीक है अभी पेरेंट्स को समझ में आ रहा है, तो फिर हम शेयर करेंगे। इज दैट ओके? ओके। या ओके। और एक क्वेश्चन आया है नीलम जी की तरफ से। मैम, व्हेन आई स्टॉप माय 24-year-old सन, he also laughs and smells his hand after itching. मुझे लगता है पहले वही सेंसरी का होगा, तो पहले हम वो ट्राई कर सकते हैं कि, और फिर इसमें ऑटिज्म ही है क्या, ऑटिस्टिक चाइल्ड है? नीलम जी ऑटिस्टिक चाइल्ड शायद है, आप अपने आप ऑटिस्टिक ही को होगा, अनम्यूट भी कर सकते हैं। क्योंकि अपने डाउन्स नहीं तो सीपी बच्चों, डाउन्स के बच्चे तो मोस्ट 90% ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस और ये सब। जब वो होने के बाद वो हाथ धोएंगे 10 बार, वो स्मेल नहीं करेंगे। जो आज तक के जो हमारे पास जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे आए उनका है। सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे भी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि मुझे हाथ धोना है, नहीं तो आई वांट टू वॉश माय हैंड्स वगैरह। जो ऑटिस्टिक के बच्चे होंगे तो उनको सेंसरी नहीं, तो उनको वो वापस फील अच्छा लगता होगा, टेक्सचर, और ये अभी मैम ने जो बताया वो हो सकता है। करेक्ट। ओके, मिस वनेसा, आपको कुछ शेयर करना था? आई सॉ योर हैंड रेज्ड।
No, a parent was unmuted and speaking, so I was just asking her to wait. Rupali ma'am has raised her hand, so Rupali ma'am, you can unmute yourself and share. Do you have? आपने अच्छा Hello. Rupali, are you there? Okay, I'm not sure if she can hear us. I think we've covered all the questions so far. Thank you so much, Mrs. Manjumdar. आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, इतनी अच्छी तरीके से पेशेंटली हमें हर एक पॉइंट समझाए. It was very informative. हमने एज एजुकेटर्स ने भी बहुत कुछ सीखा आपके सेशन में से. So thank you very much. Before we end the session, Miss Vanessa wants to just share one last thing from us, and then we can all leave the session. So please give us 1 minute. We are just going to share what we are going to do next and what are few things which are on an ongoing basis which will benefit your children. तो आपके बच्चों के लिए हमारे पास और 2 या 3 चीजें हैं जो आपको हमको आपको समझाना है. So please give us 2 minutes and we'll always be mindful. We've read the feedback also on the chat. We will make sure that our workshops are in English and Hindi ताकि सबको समझे. Both of you all can be benefited by it. So meanwhile, Miss Vanessa is sharing. We just wanted to speak about Samarthya. It is a foundation which is a place in which under one roof we are just helping every parent, every family. We are giving sibling support, family support. We are doing sessions for children which is available both online and offline. We have occupational therapists on board. We do have speech therapy as well. So please feel free to get in touch. अभी फिलहाल हमारे 2 समर कैंप्स होने वाले हैं. इट इज गोइंग टू बी बोथ वर्चुअल एंड इट इज गोइंग टू बी इन पर्सन ऑल्सो. जो कोई पुणे में रहेगा तो फिर आप इन पर्सन भी साइन अप कर सकते हो. वी विल शेयर अबाउट इट्स डिटेल सून. सो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच. आपको किधर भी कहीं पे भी कोई भी हेल्प चाहिए रहेगी, वी आर रियली हैप्पी टू सर्व यू ऑल. और अगर आपको लगता है कि आपको टाइम कंस्ट्रेन है या फाइनेंशियली फीस ज्यादा है, we also provide sponsorship. So please feel free. हमारा vision mission वो है कि हम सभी को support करें. Remotest part of the world में जिधर भी कोई बच्चा को service चाहिए रहेगा वहाँ पे हम दे. So please spread the word out. We'll be more than happy to serve the children. Yes. Okay, Miss Vanessa, for some reason the screen was not okay. Now it is shared. Yes. So this is the screen that we wanted to share. We focus on the children and these are the services that we've already spoken about. Do you have any questions? Please feel free to write it in the chat or unmute yourself. Okay, I think we are good to go. Again, thank you so much, Mrs. Manjumdar, for your time. It was a pleasure having you on board. And thank you, parents, for being so patient. We love the participation and we are looking forward to this participation next Friday also. Okay, bye, parents. Have a very good evening. Rupal will address that question separately. Feel free to get in touch with us. We'll come back and tell you about the blue map. Yes, thank you so much, Rupal. Bye. Ms. Kalika. Thank you so much for your time and the lovely training session. And yes, parents, I know some of y'all have requested for another training session with Kalika ma'am, a more in-depth with details, and we will surely arrange for it because I know Kalika ma'am would also love to meet y'all again and do this session more in details. Yes. All right. Thank you, parents. Have a good evening. Thank you for joining us. See you all next Friday. Thank you, everyone. Bye. Bye.